Principal, Dr. Rizwana Hamdani ma'am, Vice Principal, Dr. Arif Anjum sir, IQAC Coordinator, Dr. Shakib Ahmed, our respected academic head, Professor Imran Ahmed, Honorable Chief Guest of today's webinar, Dr. Nand Kumar R. Mali sir, and all my colleagues. Good morning, everyone. It is a great pleasure to welcome you all to this insightful webinar on behalf of Mahatma Gandhi Vidya Mandir's Arts, Commerce and Science College, Malegaon City. Department of Computer Science and Mathematics organizes one-day state-level webinar on uses and benefits of artificial intelligence in education. Technology is transforming the way we learn, and AI is at the heart of this revolution. From simple PPT based learning to smart tutoring systems, AI is making education more interactive, efficient, and accessible for both the learners as well as teachers. Yes, AI has started its journey from simple chatbot, and now the journey is continuously growing. Today, we will explore how AI is shaping the future of education and how we can maximize it for better learning experiences. And to explore all these knowledge and experiences, today we are honored to have with us our esteemed chief guest, Professor Dr. Nand Kumar Mali sir. To begin this session, I would like to invite Dr. Shakib Ahmed, our IQAC coordinator and HOD of Commerce Department, to deliver the welcome note. Dr. Shakib Ahmed, please, sir. Hello, hello, Shakib, sir. Shakib sir, Yes, sir. Hello. Yes, sir. Yes, sir. एक्चुअली सर वो माइक स्टार्ट नहीं हो रहा था 1-2 मिनट सर. Am I audible, sir? Hello. yes, 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 sir. sir. Yes, sir. Uh, shall I start? Yes, sir. Okay. Good morning, everyone. On behalf of MGV's Arts, Science and Commerce College, Malegaon City, I, Dr. Shakib Ahmed, IQSC coordinator, welcome all the dignitaries, especially our keynote speaker, Dr. Nand Kumar R. Mali sir, and all the participants who have joined this webinar. I hope that this webinar will definitely explore the uses and benefits of artificial intelligence in education, and all the participants will benefited with this topic. I once again welcome all the participants and conclude my speech. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much for your warm words and for setting the tone of today's webinar. Now, moving forward, let us understand the aims and objectives of this webinar.
And to present this, I would like to invite Professor Mubashira Nasreen Ma'am, HOD of Mathematics Department. Mubashira Ma'am. Thank you, ma'am. Am I audible? Yes, yes. Yes, ma'am. Welcome and a very good morning to everyone on behalf of MGV's Arts, Commerce and Science College, Malegaon City. I am Professor Momin Mubashira, head the Department of Mathematics. The aims and objectives of a one-day state-level multidisciplinary webinar on uses and benefits of artificial intelligence in education are to introduce students to the concept of artificial intelligence and its application in education, to help students comprehend the benefits and potential of AI in enhancing teaching, learning, and assessment, to equip students with the knowledge and skills necessary to effectively utilize AI powered tools in their academics, to provide hand on experience with AI powered tools such as learning language learning platforms, math solvers, or virtual learning environments, to inspire students to explore the possibilities of AI in education and to think creatively about its application, to encourage students to create their own AI enhanced learning activities, promoting creativity and innovation. By achieving these aims and objectives, the webinar will empower students to effectively utilize AI powered tools, think critically about AI in education, and develop a growth mindset towards the evolving landscape of education. Thank you, ma'am. Over to Samreen, ma'am. Thank you, ma'am. Now, for outlining the vision and goals of this session, I would like to thank Mubashira Madam. Now, it's time to invite our chief guest, Dr. Nandkumar R. Mari sir. He is a dedicated professor as well as doctor with lots of experience and mastery in computer science and applications. He achieved remarkable academic excellence, securing top ranks in his master's and BSc studies. The most notable thing is that BSc he has completed his BSc from chemistry stream. Currently, he is vice principal at Panchwati College of Management and Computer Science, Nashik. He is also the HOD of Computer Science Department in PCMCS and working as a faculty member, where he teaches various subjects of computer science and applications. He has actively contributed to the research community, participating in numerous national and international conferences, workshops, and research initiatives. We are privileged to have him with us today, and we look forward to his valuable insights. Please join me in welcoming Professor Nand Kumar Mari sir. Thank you so much, ma'am. Today we are deliver a seminar on the AI, artificial intelligence, and what is the uses and benefits regarding the AI tools. Okay, not I'm going to elaborate the AI, how to develop and how to create AI tools. Okay, we are using the just applications of AI tools for the educations, your studies, student studies, and all the things those are included in our daily institution work. Okay, can I share the my screen? Can you shift to host? Yes, sir.
Okay. Screen is shareable now. I just change in my microphone. Wait a I think I am audible. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Just a minute. Yes, I am audible now, I think. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा सा मैं हिंदी में बात करूंगा, थोड़ा अंग्रेजी में चला जाऊंगा, क्योंकि स्टूडेंट भी बहुत सारे यहाँ पे कनेक्टेड है. ओके, हम शुरुआत करते हैं शुरू से, जहां से एआई का जन्म हुआ. ओके, हिस्ट्री ऑफ एआई. तो ये आपके सामने एक पिक्चर होगा शायद, मेरे ख्याल से. Yes, sir. ओके, व्हाट इज इंडिकेट? एंड देखिए ये पिक्चर क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारा जनरेशंस थे, ओके, कहां से स्टार्ट हुआ और कहां पे जाके वो रुक रहा है. ओके, अभी इसके आगे क्या होगा वो तो हमें और एक स्पेस यहाँ पे छोड़ दी हुई हमने, क्योंकि यहाँ पे आगे जाके क्या होगा. देखिए, आदमी चार यानी कि दोनों हाथ और दोनों पैरों के साथ चल रहा था. थोड़ा सा उसको ये मिला तो वो क्या हुआ, थोड़ा सा स्ट्रेट होने लगा. ओके, जब इतना स्ट्रेट होने लगा कि वो रोबो जैसे दिखने लगा. ओके, तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके, थोड़ा सा आ जाते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज एआई? एआई आर्टिफिशियल, इसका मतलब होता है कि मैन मेड. ओके, और इंटेलिजेंस इसका मतलब रहता है कि जो हम सोच रहे हैं, जो हमारी बुद्धिमत्ता हम जिसे बोलते हैं, इंटेलिजेंस बोलते हैं, उस इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है कि किसी ने क्वेश्चन देने के बाद उसको अप्रोप्रिएट आंसर देना ही इंटेलिजेंस है. ओके, जैसे हमने क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन लिख दिए और उसके बाद उसका आंसर लिखना बच्चों की बुद्धिमत्ता आती है, वहां पे आर्टिफिशियल यानी कि यहाँ पे इंटेलिजेंस आता है. जो इंटेलिजेंस चेक करके हम बच्चा कितना इंटेलिजेंट है वही दिखा देते हैं. इसका मतलब ये क्या है, मैन मेड इंटेलिजेंस है. अभी मैन ने इतना मेड कर लिया, ने इतना कुछ कर दिया है कि हम देखेंगे आगे कि आपका सिनेरियो क्या है, कि जॉब्स पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, प्रॉम्प्ट राइटर कितना पैसा कमाएगा, एआई में कितना फ्यूचर है, जो टेक्निकल बैकग्राउंड है, जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से, सबके लिए कितना आसान एआई बन चुका है और कितना आसान हो चुका है. ओके, इसके बारे में हम थोड़े से आगे जाके देखते हैं कि एआई में कौन से बिग शार्क्स है. ओके, तो देखिए यहाँ पे बिग शार्क से हमें सिर्फ कितने पता है, एक दो पता है. कौन सा? एक चैट जीपीटी जो शुरू में आया था, जो पहले आता वो ज्यादा याद में रहता है. इसके लिए चैट जीपीटी हमारे सामने बहुत ज्यादा है. ओके, उसके बाद हमारे सामने कौन आया था? चैट जीपीटी के बाद कौन आया पता है आपको? जेमिनी करके आया. ओके, गूगल का एक खुद का एआई टूल से, जिसे हम क्या बोलेंगे, जेमिनी बोलेंगे. ओके, उसके बाद कौन आया जिन्होंने इन सबको पीछे डाल दिया? ओके, चाइना का काम है कि सबको ओवरकम करके आगे कैसे चले जाए. तो उन्होंने क्या किया, एक डीप सीक करके लॉन्च किया. ओके, ये डीप सीक उन्होंने क्या किया कि चैट जीपीटी और जेमिनी, ये दो हमें याद है, इसका मतलब वहां पे थोड़ा सा पेड वर्जन्स में चले जाते हैं. ओके, तो क्या होते है, एक आदत लगाने के बाद किसी को पेड कर दिया तो उससे क्या होता है, इनकम सोर्सेज बढ़ जाते हैं. तो चैट जीपीटी और जेमिनी लोगों का काम आसान कर रहे थे, इसके लिए इनके दोनों की वैल्यू क्या होती थी, बढ़ती जा रही थी. लेकिन जब डीप सीक लॉन्च हुआ तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को हिला दिया. कैसे हिला दिया कि उन्होंने जो डीप सीक का वर्जन R1 और R2 है, दो लॉन्च किए, तो उसमें उन्होंने क्या कर दिया कि सब कुछ फ्री कर दिया शुरू में. अभी जो फ्री कर दिया तो इन दोनों की वैल्यू डाउन हो गई, एक चैट जीपीटी और जेमिनी. हमें सिर्फ ये तीन लोग पता है. कौन से तीन? चैट जीपीटी, डीप सीक और जेमिनी. उसी की तरह गूगल एआई स्टूडियो ओपन है, जहां पे एआई स्टूडियो, यहाँ पे कोडिंग आप कर सकते हैं. ली चैट है, को पायलट है. माइक्रोसॉफ्ट अभी एक इसका चैट जीपीटी ओपन एआई का है. डीप सीक चाइना से वहां पे लॉन्च हुआ है.
गूगल का जेमिनी है, और हम आज देखेंगे को पायलट हमें कितना इंपॉर्टेंट है और हम इसके साथ कितना काम कर सकते हैं। ये जो है को पायलट, ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया हुआ है। ओके, तो हम एक ही एआई टूल पे, यानी किसी को कुछ बता दिया तो वो क्या करता है, सीधा सिंपल सिंपल चैट जीपीटी पे चला जाता है, लॉगिन करने के बाद वो सब कुछ डाउनलोड कर लेता है। लेकिन इनमें से कौन सा बेटर है, कौन सा अच्छा रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा, हमें किससे आंसर ज्यादा अच्छे मिल सकते हैं और कौन सा हमें काम में पड़ सकता है, इसके बारे में हम सोचेंगे। उसके बाद एक करके और एक एक क्लाउडी। ओके, ये भी बहुत ही आसान है और बहुत ही यानी कि इस्तेमाल करने वाली चीज है। ओके, उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी पर एक बहुत बढ़िया एआई टूल्स है, जहां पे हम कौन सा भी क्वेश्चन दे दिया तो वहां पे हमें आंसर मिलना ही मिलना है। ओके, और एक साल पाए तो हम थोड़े थोड़े आगे जाएंगे ना, थोड़ा सा और डीप में चला जाएंगे। ये इतने यही टूल है ऐसा नहीं है, बहुत सारे टूल्स है जो एआई क्रिएटेड है। क्योंकि टाइम लिमिट हमारे पास कम है, इसके आपको पूरा का पूरा ये पता है, लेकिन एप्लीकेशन का यूटिलाइजेशन किस तरीके से होना है उसका डेमोन्स्ट्रेशन मुझे आज देने के लिए बोला हुआ है। तो हम आगे जाके हमें कौन सा चैट जीपीटी यूज करना है, कौन सा एजुकेशन के लिए फायदेमंद रहेगा, कैसे हम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे, ब्लूम टैक्सोनॉमी के जैसे कैसे हो सकता है, वो सब हम धीरे धीरे थोड़ा सा सेशन को बढ़ा देंगे। ओके, तो ये जो है, तो हमें यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी, जेमिनी, को पायलट, क्लाउड, डीपसीक और चैट जीपीटी, इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेनी है। उसके बाद जेमिनी करके आया हुआ है मार्केट में, यानी कि इसमें से कौन सा प्रॉपर एक्टिवेटेड है, प्रॉपर है, और हर एक में क्या हो रहा है कि एक कम पॉइंट आ रहा है, एक ज्यादा पॉइंट आ रहा है। तो हम थोड़ा सा उसका डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे और किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना चाहिए उसकी हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। ओके, तो हम पहले आ जाते हैं चैट जीपीटी पे। ओके, यहाँ पे चैट जीपीटी ऑलरेडी मैंने खोल के रखा हुआ था। यहाँ पे चैट जीपीटी आने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आपको एक विंडो दिखाई देगी, उसमें आपको कहना है व्हाट कैन आई हेल्प विथ। ओके, हम इसको क्वेश्चन डालेंगे, इसको हम पूछेंगे, उसका जवाब उसको देना ही देना है। जो कुछ भी जवाब बनेगा वो पूरा का पूरा दे देगी। और हमारे साथ में एक गूगल था। ओके, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जहां पे मैं एक आधा क्वेश्चन यहाँ पे डालूंगा। ओके, हाउ टू सेट पेपर्स। ओके, पेपर फॉर बीएससी कंप्यूटर साइंस, सिंपल क्वेश्चन था। कंट्रोल, इसको मैंने हिट दी थी। और ये क्या करेगा, जो पेपर को सेट करना है उसका आंसर भी, यानी यहाँ पे एआई ओवरव्यू करके अभी आ रहा है। ओके, तो एआई ओवरव्यू जहां पे भी यहाँ पे कंसिडरेशन उसने दे दिया है, जेमिनी जो आंसर देगी वही यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद जब नीचे जाऊंगा मैं थोड़ा सा, तो वो क्या करेगा, नंबर ऑफ पेजेस वो दिखाई देगा कि इस सवाल के आंसर के लिए आपको हर एक वेबसाइट को, हर एक अलग अलग पेज को जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पेजेस दिए, एक क्वेश्चन के आंसर के लिए यहाँ पे मुझे सिर्फ 10 दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता जाऊंगा तो क्या होता जाएगा, नेक्स्ट 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 पेपर्स चले जाएंगे। तो ये क्या हो रहा था कि हमें ढूंढना पड़ रहा था कि किस तरीके से मैं बेटर क्वेश्चन पेपर सेट कर पाऊं बीएससी कंप्यूटर साइंस के लिए, बीएससी मैथमेटिक्स के लिए, और अभी जो नए सब्जेक्ट्स आए हुए हैं, सीसी करके आया हुआ है। ओके, उसके बाद आईकेएस आया हुआ है। तो मुझे सेट करने के लिए, पेपर सेट करने के लिए अलग अलग वेबसाइट को जाना पड़ रहा था। तो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा आसान कर रहा हूँ कि कौन से वेबसाइट पे मुझे अच्छा मिलेगा, कौन से वेबसाइट से अच्छा ये होगा। तो मैं क्या करूंगा, जेमिनी पे जाऊंगा। ओके, और चैट जीपीटी पे जाऊंगा। चैट जीपीटी में मैंने सेम क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया। ओके, और यहाँ पे उसे एंटर दे दिया। तो क्या करेगा, वो स्टेप्स जो होगा वो बताएगा किस तरीके से आपको पेपर को निकालना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे तुरंत कि मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन डाला, सिर्फ वहां पे बाकी कुछ भी नहीं डाला कि कितने पेपर, कितने क्वेश्चन होने हैं, कितने मार्क्स होने हैं, कौन से टाइप से करना है। तो आप जितना डिटेल उसे प्रॉम्प्ट देंगे, मैं वापस एक वर्ड एक कर रहा हूं, प्रॉम्प्ट, जिसको प्रॉम्प्ट देना आया वो बेटर सॉल्यूशन वहां से निकाल पाएगा। ओके, तो प्रॉम्प्ट, एआई प्रॉम्प्टर
यानी कि ये एक नई एजुकेशन यानी कि नया जॉब निकला हुआ है कि जिसे एआई प्रॉम्प्ट दे आ सकता है, वो सबसे ज्यादा पैसे कमाएगा फ्यूचर में। ओके, तो उन्होंने दे दिया मुझे कि किस तरीके से अंडरस्टैंड द सिलेबस एग्जाम पैटर्न, डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर, क्रिएट द क्वेश्चन पेपर, डिफिकल्टी बैलेंस एंड रिव्यू फाइनलाइज। ओके, सेम क्वेश्चन मैंने अभी क्या कर दिया, जेमिनी को पूछ लिया। Okay. Understand the syllabus, learning outcomes, paper structure format, marking scheme, time allocation, content difficulty level, key consideration, avoid the ambiguity, ethical consideration and summary. अभी सेम क्वेश्चन मैंने किसको पूछ लिया, डीपसीक को। इन तीनों में क्वेश्चन में क्या क्या डिफरेंस आ रहा है वो देखेंगे, उसके बाद हम कौन सा ये अच्छा है वो देखेंगे। उसके बाद एक और है, यहाँ पे डीपसीक का आंसर मिल गया हमें, यहाँ पे चार्ट जेमिनी का मिल गया, यहाँ पे चार्ट जीपीटी का मिल गया। ओके, और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का मैंने अभी यहाँ पे डाला हुआ है। इसको साइन इन करते तब तक ये देख लेते हैं। देखिए अभी यहाँ पे आपको कौन सा पढ़ना अच्छा लगेगा वो देखिए, कि यहाँ पे उसने बोला कि अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, इसने बोला वापस, इसने भी कहा हुआ है कि अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस, इसने भी डीपसीक ने बोल दिया है कि अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस, यानी कि इनकी देने की जो मेथड है वो क्या है, सेम है। एंड लर्निंग ऑब्जेक्ट्स, ये एक ही डेटाबेस से क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये उठा के यहाँ पे ले रहे हैं। तो थोड़ा सा हम आगे जाएंगे। मैंने यहां से आप कुछ भी जनरेट कर सकते हो, चैट जीपीटी से हो, जेमिनी से हो और डीपसीक से हो। ओके, ये तीनों के तीनों एआई टूल्स है। जैसे कि यहाँ पे वापस एक यहाँ पे है, इसका लॉगिन करना थोड़ा सा ये हो जाएगा, उसके लिए थोड़ा रुक जाते हैं कोपायलट के लिए। तो लेकिन माइक्रोसॉफ्ट को कोपायलट इस्तेमाल करना ही करना है सभी ने, क्योंकि वो सबसे आसान है। बहुत दिन से माइक्रोसॉफ्ट इस फील्ड में है, कंप्यूटर फील्ड में है, और जैसे गूगल भी ऑलरेडी कंप्यूटर फील्ड्स में है। तो क्या हो रहा है, उनके पास डेटाबेस जो है वो बहुत स्ट्रांग है एज कंपेयर टू डीपसीक और एज कंपेयर टू चैट जीपीटी। उसमें इसके लिए क्या हो रहा है कि जेमिनी और कोपायलट ये दोनों के दोनों आंसर्स एकदम परफेक्ट दे रहे हैं, और उसके बाद जो उनका डिस्क्रिप्शन लेवल है ना वो बहुत बढ़िया है। मैंने क्या किया अभी कि नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने इसको यहाँ पे देखिए कि आपको जो कुछ भी सर्च करना होगा तो आपने यहाँ पे सिंपल मैंने गूगल सर्च कर लिया तो बहुत सारे विंडोज आ रहे हैं, हर एक विंडो को मुझे देखना है, हर एक पेज को देखना है, हर एक वेबसाइट को देखना है, और तभी भी मुझे क्या होगा, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए कहा जा रहा है, कहाँ मूव रहे, चैट जीपीटी में मूव रहे, चार्ट जेमिनी पे मूव रहे, डीपसीक पे मूव रहे। और इन तीनों में क्या डिफरेंस है, कुछ भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन तीनों की एक क्वेश्चन पेपर्स आपने निकलना है। शायद मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फायर सेफ्टी क्वेश्चन पेपर्स। हमारे सीसी के लिए अभी एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर्स हमें निकलना है। सेम मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि ये कंटेंट उठा के यहाँ पे डाल दिया। अभी देखिए मैं लिख क्या रहा हूं, वो क्या दे रहा है, जैसे गलत लिखूंगा वो खुद करेक्ट करके हमें दे रहा है।
मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉम्प्ट का लिखने का तरीका बदल देता हूं। यहाँ पे उसे बोलना है राइट अ क्वेश्चन पेपर ऑन डबल कोट में फायर सेफ्टी। ओके, आपको ऑब्जेक्टिव पेपर चाहिए, डिस्क्रिप्टिव चाहिए। मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर ऑन फायर सेफ्टी इसको प्रॉम्प्ट दे दिया और यहाँ पे तुरंत पेपर क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर यहाँ पे मिल गया। वहां पे हमने आंसर नहीं बोले हुए कि यहाँ पे इसके आंसर क्या रहेंगे, पेपर तो उसने दे दिया लेकिन उसके आंसर भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखो उसने क्या कर दिया, 10 क्वेश्चन हमें दे दिए और टोटल मार्क्स कितने दिए, 10 दिए। उसके आंसर जो होंगे वो आंसर्स क्या हो जाएंगे, नीचे उसने क्या कर दिया, थोड़ा सा एलिब्रेट कर दिया। ओके, तो उसने क्या हुआ, यहाँ से उसका फायर सेफ्टी का पेपर बन गया। तो आपको कौन सा भी पेपर बनाना होगा, किसी पे टॉपिक पे बनाना होगा तो आप वहां पे बना सकते हो। ओके, और मैं और एक नई चीज यहाँ पे दिखाऊंगा कि कौन से लैंग्वेज में आपको एक आधा आर्टिकल लिखना होगा, किसी के ऊपर आर्टिकल लिखना है, किसी साइंटिस्ट पे आर्टिकल लिखना है, अपने लैंग्वेज में लिखना है, मराठी में लिखना है, हिंदी में लिखना है, तो आप वहां पे जाके वहां से बोल सकते हैं। मैंने यहाँ पे बोल दिया उसे राइट एसे, ओके, इन मराठी ऑन माय कॉलेज। ओके, माय स्कूल, माय कॉलेज, जो कुछ भी आप लिखेंगे यहाँ पे लिख सकते हो। उर्दू में लिखना होगा तो उर्दू में वो उसे बोल सकते हो कि जो भी आपको टॉपिक मिलेगा, आपको करंट ए देखना होगा तो वहां पे उसने देखिए माय कॉलेज पे क्या क्या मराठी में निबंध शुरू कर दिया उसने। अभी जो कुछ भी लिखेगा वो क्या करेगा, मराठी में करेगा। ऐसे कितने लैंग्वेज वो एक्सेप्ट करेगा, बहुत सारे लैंग्वेजेस की जो एक्सेप्ट कर पाएगा। और एक नहीं, जेमिनी भी करेगा, डिप्सिक भी करेगा, को पायलट भी करेगा। इसका मतलब हर तरीके के लैंग्वेज का उसका इस्तेमाल वहां पे बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ को पायलट पे क्या करें, बच्चे सिर्फ क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे, जो हम एग्जाम में दे रहे हैं, जो असाइनमेंट दे रहे हैं, उस असाइनमेंट को वहां पे डाल देते हैं, वहां से क्या मिल जाता है आंसर, और तुरंत वो आंसर हमें दिखाई देते हैं कि वहां पे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। तो ये क्या होगा, बेनिफिट्स तो नहीं बनेंगे, इसे बताएंगे यहाँ पे, उसे क्या बोलेंगे, लॉस बताएंगे। कोड कोड करना होगा, किसी कोड का हमें जवाब देना होगा। साइंस के बच्चे भी है, किसी को वेबसाइट बनानी है, किसी को ब्लॉग बनाना है, किसी को इंटरेस्ट होगा वीडियो एडिटिंग में होगा, तो उसके लिए क्या है, अलग अलग टूल्स है। अभी ये सब क्या है, इंफॉर्मेटिव है। और इंफॉर्मेटिव है, यहाँ पे आप देखेंगे कि किसी को रिसर्च पेपर बनाना होगा तो यहाँ से रिसर्च पेपर भी बना सकते हो। ओके, रिसर्च पेपर बनाने के बाद अभी ये जो मुझे दिया हुआ है, ये कॉपीराइटेड है कि नहीं, रिसर्च पेपर कॉपीराइटेड के है कि नहीं। तो क्यूट बोल्ट नाम पे अभी मैंने कंट्रोल सी कर दिया और यहाँ पे एक वेबसाइट खोल रहा हूं मैं।
पैराफ्रेजिंग है, क्विलबोट। अभी ये वेबसाइट क्या करेगी, आपने जितना कुछ मटेरियल उठाया है, ओके, तो यहाँ पे दो कॉपीराइट इश्यूज हमें तकलीफ देते हैं। एक साइबर एक्ट के अंदर कि हमने किसी का टेक्स्ट कॉपी कर लिया, डिजिटल इसमें आ जाता, जो हमने टेक्स्ट किसी को कॉपी कर लिया और कई जगह पे हमारे नाम से पब्लिश कर दिया, तो वहां पे दिक्कत होगी। तो यहाँ पे एक टूल है, क्विडबोल्ट नाम की वेबसाइट है, जो हम हर टीचर इस्तेमाल करता ही करता है। इसमें क्या दिया हुआ है, पैराफ्रेजर दिया हुआ है, किसी को चेंज करना है, जो टॉपिक हमने लिखा हुआ है, जो टॉपिक हमने कॉपी किया हुआ है, उसे पैराफ्रेज करना है। इसका मतलब वहां पे क्या करना है कि सिनोनिम डालने हैं, चेंज द वॉइस करना है, जो प्लेगरिज्म में पकड़ में ना पाए। अभी हमने क्या कर लिया है, चैटबॉट से हमें मिला हुआ है। अभी यहाँ पे उन्होंने एक वेबसाइट का ये डाल दिया है कि एआई डिटेक्टर। एआई डिटेक्टर इसका मतलब क्या रहेगा, आपने जो भी एआई से कॉपी किया हुआ है, उसे वो कॉपीराइट कितना है कि अपने कितने परसेंट वहां पे उठाया हुआ है मटेरियल। ओके, हमने तो रिसर्च पेपर वहां से कर लिया, लेकिन हम आगे जाके क्या करना पड़ेगा, उसे एआई डिटेक्टर में डालना पड़ेगा। जब मैं एआई डिटेक्टर में डालता हूं, तब वहां पे क्या हो रहा है कि 100% क्या हो रहा है कि यहाँ पे कॉपी मिल रहा है। ओके, ये पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है वो किससे जनरेटेड है, ये एआई से जनरेटेड टेक्स्ट है। तो आपको इसका इस्तेमाल आप आपका खुद का बता के नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ, जो रिसर्च पेपर बनेंगे एआई से बनेंगे, कोपायलट से बनेंगे, जेम से बोलेंगे, डीप से बनेंगे, जो कुछ भी अलग अलग टूल से, जहां से रिसर्च पेपर आपने बना लिया, जहां से आपने मटेरियल को उठा लिया, आपने कोड कर लिया, आपने प्रोग्राम कर लिया, आपने ऐसे कर लिया, उसको क्या करना है, इस क्विलबोल्ट में डाल के देखना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो प्लेगराइज हो रहा है। प्लेगराइज इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपने कितना कॉपी कंटेंट उठाया हुआ है और आपका खुद का बता रहे हो, तो ये चलता नहीं। इसके लिए वहां पे एआई जनरेटेड, उसके बाद एआई जनरेटेड एंड एआई रिफाइंड। ओके, उससे आपने कुछ उस छेड़छाड़ की है क्या उस प्रोग्राम में, तो ये रिफाइंड भी बोलता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि क्विलबोट नाम की वेबसाइट है, जहां पे आपने कुछ भी रिसर्च किया, तो एक बार किसी का है या नहीं, हमने यहाँ से कॉपी किया है कि नहीं, तो यहाँ पे प्लेगरिज्म चेकर करके भी एक ऑप्शन है। वहां से हम क्या कर सकते हैं, प्लेगराइज चेक कर सकते हैं कि हमारा कंटेंट जो है कितना थीसिस और पेपर प्रेजेंटेशंस के लिए ये सब कुछ लगता है। ओके, एज पर द यूनिवर्सिटी रूल्स 10% तक आपका प्लेगरिज्म चलता है। जो डेफिनेशन है वो हम बदल नहीं सकते, जो डायग्राम से, कुछ डायग्राम ऐसे होते हैं कि बदल नहीं सकते, कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे तो उसे चेंज नहीं कर पाते, तो वो प्लेगरिज्म में आ ही जाता है। इसके लिए यूनिवर्सिटीज ने 10% तक रखा हुआ है। उसके लिए उरकुंड और टर्निटी और स्नाइपर, ये 3 एप्स यूनिवर्सिटीज ने दिए हुए हैं कि ये आपका थीसिस हो, आपका पेपर हो, कुछ भी रहा, आपका रिसर्च वर्क रहा, तो ये 3 पेपर से आपको चेक करना ही करना है। ओके, ये जो वेबसाइट है, ये जो है, ये ऑथराइज, यानी कि जिसे हम हमारा काम चला सकते हैं, कि हम देख के आगे जा सकते हैं। लेकिन टर्निटी वगैरह, उरकुंड वगैरह ये जो आते हैं वो सब्सक्रिप्शन बेस आते हैं। इसका लिए हम बेसिक इस्तेमाल करना होगा, तो इसका इस्तेमाल हम क्विडबोर्ड का कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे जाऊंगा, एक कैनवा का डेमोन्स्ट्रेशन तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन एक थोड़ी सी जानकारी, अभी एआई में कैनवा ने क्या कर दिया है। एक छोटे छोटे टूल से जो आपके डेली यूज में यूटिलाइज होते हैं, लेकिन उसका हैक जो है, इसका मतलब आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अभी देखिए यहाँ पे क्रिएट डिजाइन करके आया, तो यहाँ पे मैं यहाँ से पूरा का पूरा ये कर सकता हूँ, यानी कि आपको पता है कि यहाँ से ब्रोशर बना सकता हूँ, यहाँ से पैम्पलेट बना सकता हूँ, यहाँ से लिपलेट बना सकता हूँ, यहाँ से टेम्पलेट बना के किसी और को मैं बेच भी सकता हूँ, यहाँ से प्रॉफिट भी कमा सकता हूँ। यहाँ पे 1000+ यहाँ पे टेम्पलेट्स है, उस टेम्पलेट का इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ। लेकिन आप एजुकेशन फील्ड में हो, आप स्टूडेंट हो, आप टीचर हो, आप एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव हो, तो उसके लिए यहाँ पे इसका जो पेड वर्जन है कैनवा के, ओके, उसके पेड वर्जन में यहाँ पे 2 चीजें बताए हुए कि स्टूडेंट, टीचर और एजुकेशन के लिए वो फ्री में दे रहे हैं। ओके, उनका एजुकेशन का जो प्लान है वो उसका क्या है, फ्री में। जब आप फ्री में कर लेंगे तो
एक दिक्कत आती है हमें रेगुलर सर्टिफिकेट्स देने में, और सर्टिफिकेट समझ लो आज के प्रोग्राम में हम 100 लोग हो गए, 100 लोगों को सर्टिफिकेट्स देना है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि हम सर्टिफाई ईएम पे जाते हैं, लेकिन वहां पे वाटर मार्क लग जाता है, वो वाटर मार्क हटता नहीं। ओके, तो क्या हो रहा है कि इतना बड़ा प्रोग्राम लेने के बाद वाटर मार्क वाला सर्टिफिकेट भेजेंगे तो क्या रहेगा, तो ये थोड़ा सा चीज बन जाती है। जब आप एज ए एजुकेशन बन के यहाँ पे रजिस्टर करेंगे, यहाँ पे एक फील्ड आती है जो अभी मेरा एक्सपायर हो चुका है, मैंने दूसरे लॉगिन से आईडी से किया हुआ है कल ना, जिसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा कैनवा के इसमें, तो यहाँ पे डेटा ऑटो फिल करके कंसेप्ट है। तो वहां पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डेटा ऑटो फिल नाम की एक विंडो दिखाई देगी। उस विंडो पे क्लिक किया और एक्सेल शीट पे आपने जितने भी लोग 50 लोग यहाँ पे रजिस्टर्ड है, उन 50 लोगों के नाम वहां पे एक्सेल शीट में डाल के वहां पे अपलोड कर दिए, तो वो 50 नाम से सर्टिफिकेट्स बना देता है। सिर्फ आपको सर्टिफिकेट्स की डिजाइन आपने खुद ने क्रिएट की होगी, तो वहां पे सिलेक्ट करना है एग्जिस्टिंग, नहीं की होगी समझ लो मैंने यहाँ पे पिक्टोग्राम और कैलेंडर वगैरह यहाँ पे ले लिया। ओके, तो वहां पे बोल रहा है कि यूज ए एग्जिस्टिंग डिजाइन, आपने कुछ एग्जिस्टिंग डिजाइन यूज किया करनी है, आपने खुद ने सर्टिफिकेट का फॉर्मेट बना चुके हैं, उसी डिजाइन को इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे बोलना है यूज एग्जिस्टिंग डिजाइन। वहां पे डिजाइन बोलने के बाद आपको सिर्फ क्या करना है कि नेक्स्ट करना है, आपको फाइल को अपलोड करना है, और आपको जहां पे नाम लिखा हुआ है वहां पे नाम, आप सर्टिफिकेट आईडी देना होगा तो सर्टिफिकेट आईडी, ये दो चीज लगा देंगे, तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि आपको 50 और 100 सर्टिफिकेट्स तुरंत बन जाएंगे अलग अलग नाम से। प्रिंट करवा लीजिए, लोगों को भेज दीजिए, नहीं तो पीडीएफ करवा दीजिए, लोग वहां से उनका सर्टिफिकेट निकल के उनके पास रखेंगे, तो वहां पे कोई वाटरमार्क आता नहीं। इसका मतलब एक कैनवा जो है हम सिर्फ इस्तेमाल करते जा रहे हैं, जहां पे प्रीमियम दिख रहा है वहां पे हम उस पोस्टर को, उस बैनर को, उस टेम्पलेट को ले नहीं पा रहे, लेकिन लेना होगा तो आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, कैनवा में आपको रजिस्टर करना है एज अ स्टूडेंट, एज अ एजुकेशनलिस्ट, एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर। ओके, यहाँ पे देखिए गेट प्लान, प्राइसिंग बताने पड़ेगी आपको वहां पे एजुकेशन के लिए क्या है। जब एजुकेशन के लिए करेंगे तो इस तरीके से विंडो दिखाई देगी, नहीं तो कैनवा की विंडो जो रेगुलर इस्तेमाल करते हैं उसका ये यहाँ पे कोई ये नहीं होगा। ओके, मैंने एप्लीकेशन सबमिट किया हुआ है मेरे नए आईडी से, तो उसके लिए वो अभी अनसक्सेसफुल हुआ है, क्योंकि मुझे जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे वो बन नहीं पा रहे थे। यहाँ पे उन्होंने एक चार्ट बोर्ड भी बहुत बढ़िया दिया हुआ है कि उस चार्ट बोर्ड से आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। ओके, कैनवा क्या कर रहा है, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनसे पैसा नहीं ले रहा है, लेकिन आपको उसके प्रूफ देने पड़ेंगे। कैनवा फॉर एजुकेशन, एजुकेशन का प्रूफ देना पड़ेगा, तो ही आप वहां पे इस्तेमाल कर सकते हो, अदरवाइज इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मैंने क्यों बताया, क्योंकि 99% लोग क्या कर रहे हैं, एजुकेशन वाले इस कैनवा पे जा रहे हैं। सिर्फ आप रजिस्टर कीजिए एज अ टीचर्स, और वहां से आपको इतने सारे रिसोर्सेस फ्री में मिल जाएंगे, इतने सारे एप्स मिल जाएंगे, तो आप उसका इस्तेमाल करेंगे ना। देखिए यहाँ पे एक ऐप ऑप्शन है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मैं फ्री में लिया हुआ है, इसलिए मुझे क्या हो रहा है कि लिमिटेड एप्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से ऐप दिखाई दे रहे हैं, जेन लोगो, जेन पिक्सल, ओके, ये सब के सब, लेटर, ट्विटर, मॉक, ये सब मुझे वहां पे इंक्लूड मैं कर सकता हूं। इसके लिए क्यूआर कोड, तो हम रेगुलरली देखते हैं कि क्यूआर कोड वहां पे आ नहीं रहा है, तो हमें क्यूआर कोड जनरेट करना होगा, अवतार से इस्तेमाल करने होंगे, DID अवतार, AI अवतार। अवतार साइज का मतलब एक फोटो रहेगा कि आपको किस तरीके से बनाना है, जेन QR आर्ट आएगा। तो ये जो है इतने सारे ऐप्स है कि आपको प्रोडक्टिविटी के लिए यूज करना है, शेयर पब्लिश के लिए यूज करना है, डिजाइनिंग के लिए यूज करना है। यहाँ पे जेन QR करके है, जनरेट QR कोड, यहाँ पे QR कोड जनरेट हो जाएंगे पूरे के पूरे, जिस तरीके से आपको जिस टेम्पलेट का करना है उस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हो। इसके लिए पूरा सेशन अलग लगेगा, कैनवा का इस्तेमाल कैसे करना है, और उसके लिए हम हमारे कैसे कि डिजाइनर मिलते नहीं आजकल,
हर प्रोग्राम आए तो उसका डिजाइन बनाना है, वो वहां पे चिपकाना है और लोगों को भेजना है, पब्लिसिटी करनी है, कॉलेज की पब्लिसिटी करनी है, खुद की दुकान की पब्लिसिटी करनी है, सबकी पब्लिसिटी सब पब्लिसिटी होगी तो हम लोगों के पास पहुंच पाएंगे। ओके, और पब्लिसिटी करना होगा, कुछ करना होगा तो हमें अट्रैक्टिव रहना ही रहना है। तो कैनवा इज अ बेटर ऑप्शन है। यहाँ पे उसका भी एआई पावर्ड टूल सेट, लेकिन हम वहां पे जाएंगे जब हम रजिस्टर्ड होंगे एज अ एजुकेशनलिस्ट। ओके, तो हम थोड़ा सा पावर पॉइंट पे चले जाएंगे कि ये 3 लोग हैं, 3 लोगों से हमने अभी डिस्कशन कर दिया कि तीनों में क्या क्या चीज थोड़ी सी समझ ऐसे होते हैं, यानी कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, तो हम वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। कई चीजों में अच्छा चैट जीपीटी है, जेमिनी है, को पायलट है। को पायलट माइक्रोसॉफ्ट का है, इसके लिए वो तो थोड़ा सा स्ट्रांग ही बना हुआ है। ओके, थोड़ा सा अभी आ जाएंगे कुछ एआई टूल इस्तेमाल करने। ओके, उसमें एक है napkin.ai। अभी आप इसका सुना होगा नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा देख लेंगे कि व्हाट इज napkin.ai। मैंने शायद उसका विंडो, किसी भी थ्योरी को आपको पिक्चरल प्रेजेंटेशंस में लाना होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको napkin.ai में देना होगा। जो थ्योरी आपने लिखी है उसे आपको क्या करना है, पिक्चरल में लाना है, तो उसे हम कर सकते हैं। देखिए, मैंने इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनईपी 2020 इन हायर एजुकेशन सिर्फ इतना दिया और उसका पूरा का पूरा थ्योरी मैंने नीचे लिखी हुई, यानी कि जो चैट जीपीटी से मुझे मिला वो मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे कॉपी कर दिया, एज इट इज कॉपी किया, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए। सबका सब कहाँ से उठाया हुआ है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनईपी 2020 इन हायर एजुकेशन, और मैंने यहाँ पे जनरेट विजुअलाइज बाय क्लिकिंग द ब्लू बटन। ओके, यहाँ पे ब्लू बटन आया, उसे मैंने क्लिक किया, उसी थ्योरी को वो क्या कर देगा, पिक्चर्स डाल देगा। आपने वहां से चैट जीपीटी से उठा लिया, ओके, एज इट इज आपने डाल दिया कहीं पे, और वो क्या हो जाएगा, 100% कॉपीराइट्स में चला जाएगा। तो napkin.ai ये क्या कर रहा है कि आपके जो भी थ्योरी है उस थ्योरी को क्या कर रहा है, पिक्चरल प्रेजेंटेशंस में दे पा रहा है। ओके, तो हमने जो पेपर रिसर्च पेपर करते हैं उसको थोड़ा सा मैंने इनहांस कर दिया। देखिए, एनईपी 20 हायर एजुकेशन, एनईपी इंट्रोडक्शन, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, इनहांस द क्वालिटी एजुकेशन एंड इंक्रेजिबिलिटी। ओके, थोड़ा सा नीचे और जाऊंगा, जिस जिस तरीके से उनको अभी जहां पे टॉपिक दे उसके तरीके से क्या होता जाएगा, यहाँ पे नया वाला देखिए, कौन सी डायग्राम को आपको इस्तेमाल करना है, 1 बाय 1 जो भी आपको अच्छे लगेंगे आप यहाँ पे डाल सकते हो। आपने कौन सा भी रिसर्च प्रोजेक्ट लिया, कुछ भी लिया, तो आपको डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाना है, कोई का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगा। ओके, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की थ्योरी यहाँ पे डाल दीजिए और यहाँ से क्या कीजिए, डायग्राम्स को तैयार कर लीजिए। तो ये डायग्राम क्या हो जाएगी, आपको वहां पे इस्तेमाल करने के लिए आसान हो जाएगी, जो इंटरेक्टिव बन पाती है। और नैपकिन का सिर्फ इतना ही इस्तेमाल नहीं है, आप किसी भी लैंग्वेज में उसको बोल सकते हो, उसके लाइब्रेरीज का इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ पे उसके स्टाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ा सा आपको क्या, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट पे चला जा रहा हूं कि आपने चैट जीपीटी से कॉपी कर लिया, चेक करना है कि कितना ए डिटेक्टर है। ये चेक करने के बाद वहां से हमें पैराफ्रेज करके वहां पे उसका क्या करना है, एआई डिटेक्शन जो है वो कम कर लेना है। वो कम कर लिया, पूरी की पूरी थ्योरी आपके सामने आ गई, चैट जीपीटी से होगी, जेमिनी से होगी, डीपसीक से होगी। उसको हमें पिक्चरल प्रेजेंटेशन में लाना होगा तो हम किसका उसका इस्तेमाल करेंगे, napkin.ai का इस्तेमाल करेंगे, जो फ्री अवेलेबल है। उसको कोई प्राइसिंग सोर्स अभी तक उन्होंने लगाया हुआ नहीं है। ओके, तो ये एक टूल है नैपकिन, और एक टूल है जिसे हम क्या बोलेंगे, इन्फोग्राफिक। ओके, ये भी क्या करेगा, infographic.in, आयन का मतलब क्या हो जाएगा, इंडिया। तो यहाँ पे infography.in ये एक टूल है जिसका इस्तेमाल हम करेंगे, तो हम, ये भी पूरा का पूरा फ्री है, लेकिन यहाँ पे लॉगिन करने में ही समय चला जाएगा। देखते हैं, जल्दी हो पाएगा तो ठीक है। थोड़ा सा मैं चैट जीपीटी डीपसीक को क्लोज कर देता हूं।
चलो, जब तक होता है तब हम नए टूल पर जाते हैं। ये सब के सब टूल्स है जो हमें इस्तेमाल करने हैं। अभी ये दो तीन टूल्स है, ओरली मैं आपको बताता हूं। आपने सुने भी होंगे, एक गैमा करके है, vpeak.com करके है, tom.ai करके है। ये तीनों के तीनों टूल जो है, ये तीनों के तीनों टूल्स हम किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? हम इस्तेमाल करेंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए। जो भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको बनाना है उसके लिए गैमा, उसके बाद वीपिक और tom.ai। इसमें से वीपिक जो है वो फ्री में है, गैमा भी थोड़े फॉर बाद में क्या कर रहा है कि कुछ क्रेडिट्स दे रहा है, उस क्रेडिट्स में हम कर पाएंगे। जैसे ईमेल आईडी बदलेंगे तो और क्रेडिट बढ़ जाएंगे, ईमेल आईडी बदलेंगे तो और क्रेडिट्स बन जाएंगे। तो इसका इस्तेमाल करेंगे, आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको आसानी होंगी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के लिए, जहां से बेस्ट ऑफ बेस्ट आपको ये मिल रहा है। और सबसे जो स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट से, हम जैसे टीचर्स के लिए इंपॉर्टेंट से, तो उसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये कर लेता। आपने सुना होगा कि ड्यूओलिंगो ये जो टूल है, इससे आप कौन सी भी फॉरेन लैंग्वेज को सीख सकते हैं। ओके, थोड़ा सा मैं इसके होम पे चला जाता हूं। यानी कि इतना इंटरेक्टिव है, बच्चा खुद से उसको समझ लो, उसको स्पेनिश सीखनी है, जर्मन चाहिए, कौन सी भी फॉरेन लैंग्वेज हो वो डुओलिंगो से सीख सकता है। इसको होना ही होना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नैपकिन को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे, इंग्लिश को करना होगा तो इंग्लिश कीजिए, आपको फ्रेंच को करना होगा तो फ्रेंच के कीजिए। उसके बाद बहुत सारे लैंग्वेजेस है जहां पे हम इसका ये कर सकते हैं। एकदम सिंपल है, जितना कुछ भी आसान नहीं उतना वो आसान है। ये देखिए, यहाँ पे मैं होम पे आया, कल एक यूनिट मैंने क्रॉस कर लिया था। ओके, तो उसको मैं वापस एक बार विच वन ऑफ दीज इज द वुमन। अभी मैंने क्या हुआ है, फ्रेंच लैंग्वेज को सिलेक्ट किया हुआ है। मुझे फ्रेंच पढ़ना है, फ्रेंच समझनी है और उसके साथ मुझे जाना है। ओके, अभी मैंने यहाँ पे विच वन ऑफ दीज इज द वुमेन, द वुमेन। अभी यहाँ पे वुमन का दो स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये जो है वो क्या दिखाई दे रही है, लड़की दिखाई दे रही है, ली चार्ट मुझे कैट दिखाई दे रही है, और लेट फिमाई ला फिमाई, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो इसको है मैंने टेक कर लिया। अभी यहाँ पे उसने प्रोनाउंसिएशन भी दे दिया, ले फैम। ओके, और उसको मैंने चेक कर लिया, मेरा परफेक्ट आ गया आंसर, तो मैं अभी क्या बोलूंगा, कंटिन्यू। उसके बाद सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग। अभी वुमेन के लिए वहां पे हमने क्या यूज किया, हाँ, वापस क्लिक किया। ओके, अभी मैंने चेक कर लिया, एक्सलेंट। जहां पे वुमेन का रेफरेंस था वो वुमेन का रेफरेंस क्या हो गया, आगे आ गया। ओके, मुझे अभी फ्रेंच में पता चल गया कि
वुमन को क्या स्पेलिंग से मैं बता सकता हूं। ओके, उसके बाद क्या हुआ, मैंने कंटिन्यू कर लिया, उसके बाद यहाँ पे आया द गर्ल। अभी यहाँ पे वुमन और ये कौन है, गर्ल। ओके, गर्ल के लिए यहाँ पे क्या बोला है, देखिए चेक। ओके, और उसे कंटिन्यू कर दिया। ओके, व्हाट डू यू हर्ड। अभी यहाँ पे देखिए, ओके जे। अभी यहाँ पे वापस मैं बोलूंगा कंटिन्यू। ये इतना इंपॉर्टेंट है, इससे आप इंग्लिश होगा, फ्रेंच होगा, स्पेनिश होगा, जो कुछ भी आप इस्तेमाल करेंगे इससे आगे जा पाएंगे। ओके, गर्ल के लिए मैंने थोड़ा सा कल कर लिया था इसलिए गार्सन। ओके, सॉरी, गर्ल्स के लिए अभी जस्ट हमने दिया हुआ इनफिल। ओके, अ गर्ल, कंटिन्यू। ओके, अभी इस तरीके से आपको क्या होगा, इंटरैक्टिव सेशंस मिलेंगे। उस सेशन से क्या हो जाएगा, आप थोड़ा बहुत गार्सन किसको बोलते हैं, फेमिंग किसे बोलेंगे, अतः यहाँ पे आ गया फिल क्या है, उसके बाद फॉर्मताबला क्या है, ये वॉन्जोर क्या है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे पता चलेगा। लेकिन आपको इस यहाँ से एक कोर्स को सिलेक्ट करना है। वो कोर्स ये जो है, एक कोर्स आपको फ्री में मिलेगा, बाकी जो आगे प्राइसिंग में चले जाएंगे। तो ड्यूलंगो ये क्या करेगा, आपको कौन से भी लैंग्वेज को पढ़ना है, सीखना है, इस तरीके से सीखना है जो कि बहुत इजी है। ओके, अभी यहाँ पे देखिए अन एट, ओके, यहाँ पे दिखा रहा है ओ डैश डैश एंड। ओके, अभी ये कौन है, गार्सन, यानी कि अन गार्सन एंड अ फिल गर्ल, चेक, इट्स करेक्ट नाउ। ओके, इस तरीके से आप डुओलिंगो को जाएंगे तो हर एक प्रकार के लैंग्वेज आप सीख सकते हो। और हर बच्चे ने आज ही रजिस्टर कर लेना है, आज ही यहाँ से आपने एक लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है, फॉरेन लैंग्वेज को, और उसका इस्तेमाल करते बैठना है, टाइम पास करते बैठना है। आपको कितना टाइम देना है हर हर रोज डुओलिंगो को, वहां पे वो बताता है 5 मिनट्स देंगे, 10 मिनट्स देंगे, 50 मिनट्स देंगे, आधा घंटा देंगे। जिस तरीके से आप सिलेक्शन करेंगे शुरू में, उसी तरीके से वो डुओलिंगो क्या करेगा, आपको नोटिफिकेशन देगा और उतना आपको करना ही पड़ेगा। जब आप करेंगे, कंटिन्यूस रहेंगे, तो आपको ये लैंग्वेज जो होगी वो सीखने के लिए आसान हो जाएगी, बेसिक आपका कवर हो जाएगा और बाकी तो बाद में चला जाएगा। ओके, तो ये डुओलिंगो करके एप्लीकेशंस था। उसके बाद आएंगे हम पेपर गाइड। रिसर्च पेपर करना होगा। रिसर्च पेपर के लिए अभी जो फर्स्ट ईयर के बच्चे होंगे, सेकेंड ईयर के होंगे और बीएससी के होंगे, तो उनको थोड़ा सा रिसर्च का ये नहीं पता चलेगा, लेकिन स्टाफ यहाँ पे होगा। तो पेपर गाइड करके ये आया है, उसको आपने डाल दिया तो आपको जो आंसर्स मिलेंगे वो चैट जीपीटी से थोड़े से अलग रहेंगे। यानी कि थोड़ा सा रिसर्च कर लिया, पेपर गाइड पे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे रेफरेंसेस, राइटर, हिस्ट्री, ओके, लिटरेचर रिव्यू, चैट विथ पीडीएफ एंड एक्सट्रैक्ट डेटा। ओके, यू आर ऑल इन वन एआई रिसर्च असिस्टेंट। आपको एक एआई रिसर्च असिस्टेंट मिलेगा। उस रिसर्च असिस्टेंट के साथ ही आप क्या करेंगे, लिटरेचर रिव्यू लेना है किसी टॉपिक पे, तो आप लिटरेचर रिव्यूज ले सकते हो, एआई सर्च कर सकते हो। तो ये टूल जो है आपको याद रखना है, paperguide.ai। पेपर आसानी से बन सकता है, आपको जिस लैंग्वेज में बनाना है उस लैंग्वेज में आप यहाँ पे भी बना सकते हो। यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर कहीं पे भी नहीं है एआई में, तो आप इसका इस्तेमाल, पेपर गाइड का इस्तेमाल कर सकते हो। जो लिटरेचर रिव्यू वगैरह सब कुछ लिखना होगा तो आप कर सकते हो। यहाँ पे देखिए कोई चार्जेस यहाँ पे नहीं, रिफंड एंड अर्न है। ओके, तो यहाँ पे कोई प्राइजेस उसकी दिखाई नहीं दे रही अभी तक। जब आ जाएंगे, यानी कि इस्तेमाल बढ़ेगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो प्राइजेस में आ जाएगा। फिलहाल तो प्राइजेस में नहीं है। ओके, यहाँ पे नोट जीपीटी और नोट्स, यूट्यूब को हमें, यूट्यूब का वीडियो है, एक आधा वीडियो बहुत अच्छा लग गया, उस वीडियो का हमें क्या करना है, नोट्स में कन्वर्ट करना है।
नोट्स में कन्वर्ट करना होगा तो आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? नोट जीपीटी करके एक एआई है। नोट जीपीटी करेंगे तो यहाँ पे मैं दिखाई देता हूं नोट जीपीटी किस तरीके से दिखाई देगा। दो लोगों का अभी कन्वर्सेशन चल रहा है, ओके। तो उन दोनों के नाम से, उन दोनों के वॉइस टैग से वो दोनों लोग क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। आप यहाँ पे यूट्यूब का वीडियो क्या कर सकते हो? समराइज कर सकते हो। यहाँ पे आपके लर्निंग स्टडी मटेरियल्स क्या कर सकते हो? खुद के बना सकते हो। जो एक आध लेक्चर किसी एक ने बंदे ने दे दिया, बहुत अच्छा लेक्चर था, उसको हमें नोट्स में कन्वर्ट करना है, तो कहा जाएंगे आप सिर्फ सीधा चले जाएंगे नोट जीपीटी एआई पे। उसका पूरा का पूरा एआई समराइजर है, कौन से भी टॉपिक को वो समराइज कर देगा, उसकी पीपीटीज बना देगा। तो आप इसका नोट जीपीटी का आप इस्तेमाल कर सकते हो, ओके। तो आप यहाँ पे गेट स्टार्टेड फ्री, ये पूरा का पूरा फ्री है, इसके लिए यहाँ पे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, ओके। तो गेट स्टार्टेड फ्री पे हम एक वीडियो डाल देंगे, उस वीडियो से क्या हो जाएगा? आपको उसके नोट जो होंगे वो मिलते जाएंगे, ओके। नोट जीपीटी को याद रखना है, वो साइन इन होगा तब तक हम आगे चले जाएंगे। थोड़ा सा बहुत सारे टूल्स है जो हमें इस्तेमाल करने हैं। लॉगिन एक्सपायर हो चुका है इसका भी। देखिए प्राइजेस में आ गया $14 पर मंथ, ओके। और पर ईयर के 174 ऑफर भी दे रहे हैं वो। ये जो हमें रीडिंग सिर्फ क्या लिखा है तो करना अभी है? बेसिक्स अभी में जो से रीडिंग काम लिया करना है, परसों को पार्ट वन तो वहां पे हम कर सकते हो। यूट्यूब का वीडियो हमें नोट्स में कन्वर्ट करना है तो हम एआई इसके हिसाब से कर सकते हैं। आगे वाला टूल जो है वो क्या है? माइंड लस्टर। अभी जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं जल्दी नई जल्दी है, करो। उनको सबको ये माइंड लस्टर नाम की चीज जो है वो याद ही रखनी है। ये तो एआई में नहीं चली जाती, लेकिन यहाँ पे माइंड लस्टर जिसको पता होगा, यानी कि यहाँ पे देखिए 33 lakhs ऑनलाइन कोर्सेस एंड मुक विथ फ्री। यहाँ से जिस बच्चे ने कोर्स कर लिया उसका सर्टिफिकेट्स भी उसको मिलेगा, जो इस वेबसाइट का नाम है माइंड लस्टर। इस माइंड लस्टर में आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे जो आपको कोर्स चाहिए, मुझे सिर्फ देख सीखना है पाइथन, ओके, और एंड्रॉइड, और उसमें भी पाइथन फ्लैश सीखना है, पाइथन प्रोग्रामिंग करना है। वहां पे मैं क्लिक करूंगा और वहां से क्या हो जाएगा? माइंड लस्टर का प्रोग्राम, ज्वाइन द कोर्स, गो टू कम्युनिटी, डाउनलोड कोर्स कंटेंट। यहां से वो क्या कोर्स क्या हो जाएगा? ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। कितने नंबर ऑफ कोर्सेस है? बहुत। यहाँ पे 3 lakhs ऑनलाइन कोर्सेस है, मुक कोर्सेस है। आप जो चाहिए वो कोर्स यहाँ से माइंड लस्टर से ले सकते हो और पढ़ सकते हो, ओके। वहां पे देखिए प्रोग्रामिंग है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, ग्राफिक डिजाइन, मेडिकल, लैंग्वेजेस, बिजनेस, मार्केटिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, वेब डिजाइनिंग, मोबाइल डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल के भी यहाँ पे 111 कोर्सेस हैं। 220 कोर्सेस लैंग्वेज अरेबिक के हैं, अकाउंटिंग है, मैथमेटिक्स है, 157 कोर्सेस है, ओके। यहाँ पे आपने मैथ्स वाले बच्चों ने क्लिक कर लिया और वहां पे जाके वहां पे उसको देखना है कि कौन से कोर्स के लिए उससे जाना है। लॉजिक, एक्सप्रेशन, टेक्निक्स है। ये क्या कर सकता है? हर एक बच्चा क्या कर सकता है? फ्री में कोर्स ले सकता है, और फ्री में कोर्स लेने के बाद उसको सर्टिफिकेट्स भी यहाँ से मिलेगा। वुमेन एंड ब्यूटी, म्यूजिक, ओके। म्यूजिक से एक याद आया, किसी बच्चे को लिखने की आदत रहती है, बेटे बेटे कुछ ऐसा 2-3 पोएम की लाइन बना देता है, उस लाइन को उसको उसने उससे समझ में नहीं आता कि किस तरीके से म्यूजिक कंपोजिशन करना है, क्या करना है। तो उसके लिए भी एक ऐप है, यानी कि suno.ai, सुनो ही है शायद, यस, देखते हैं। मेक एनी सॉन्ग यू कैन इमेजिन, ओके। आप यहां पे डाल दीजिए, कुछ भी डालिए। मेरे लेक्चर में कोई नई
आया टू टू आई, कुछ भी डाल दीजिए, कुछ भी जो मन में आए वो डाल दीजिए। यहाँ पे साइन अप कीजिए और आप म्यूजिक का आनंद लीजिए। ओके, यहाँ पे नंबर डालना पड़ेगा, फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए कि इसका फायदा लीजिए थोड़ा सा। आपने कुछ लिखा है, कुछ उर्दू में लिखा होगा, कुछ गजल लिखी होगी, उस गजल को सॉन्ग में कन्वर्ट किया तो किस तरीके से सॉन्ग आना आ रहा है और किस तरीके से हमें सॉन्ग चाहिए, उसका कंपोजिशन आप खुद करेंगे। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो सॉन्ग आपका बन जाएगा। डाउनलोड किया आपने, आपके रिंगटोन में रख दिया, आपने लोगों को भेज दिया, आपके नाम से भेजा, वहां पे थोड़ा सा डाल दीजिए कि यहाँ पे दिस सॉन्ग इज क्रिएटेड बाय नंद कुमार माड़ी, एंड उसके बाद क्या हो जाएगा, सॉन्ग आ जाएगा। तो ये जो है suno.com करके आपको याद रखना है। ये म्यूजिक वर्ड आया इसलिए मैंने वो सुनो को बता दिया, तो याद रखिए। आपको पता है कि माइंड लस्टर, उसके बाद tiniwow.com करके एक वेबसाइट है। उस वेबसाइट में आपको नंबर ऑफ टूल्स मिल जाएंगे जिसका इस्तेमाल आप आपके एजुकेशन में कर सकते हो। ओके, देखिए यहाँ पे फाइल टूल्स है, पीडीएफ टूल्स है, ओके, इमेज टूल्स है, वीडियो टूल्स है, एआई राइटर्स है। इस तरीके से आपके पास क्या होंगे, बहुत सारे टूल जो होंगे वो आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाएंगे। इसे ऑल टूल्स पे क्लिक कर दिया, कॉम्प्रेस पीडीएफ करनी है, अपस्केल इमेज करनी है, पैराग्राफ कंप्यूटर करना है, जीपीजी टू पीडीएफ करना है, किसी और वेबसाइट पे जाने का काम ही नहीं। ओके, प्रोफाइल फोटो करना है आपको, प्रोफाइल फोटो मेकर यहाँ पे है, आर्टिकल राइटर है, टोन वॉइस है, वॉइस का टोन बदलना होगा तो आप यहां से कर सकते हैं। नंबर ऑफ टूल्स है, जिस टूल्स को आप इस्तेमाल आपके एजुकेशन में कर सकते हैं और आप इसका इस्तेमाल करके बाकी लोगों को भी बोल सकते हो। यहाँ पे 300 प्लस टूल्स है जिसका टूल्स का इस्तेमाल आप खुद कर सकते हो और दूसरों को भी आप सिखा सकते हो। ओके, यहाँ पे एक एक टूल्स का लेंगे तो आगे जाते जाते हमें बहुत देर हो जाएगी। थोड़ा सा आगे वाला जो पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। टिनी वाव को आप समझ में आए, यहाँ पे आपने एक स्क्रीनशॉट भी ले लिया तो आगे वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एक मिनट, अभी ये 2-3 ऐप है, प्रोग्रामिंग वाले बच्चे होंगे तो गूगल एआई स्टूडियो करके ऐप है, उसका भी थोड़ा सा कोड मैं आपको बता देता हूं। इतना सब कुछ आसान करके रखा हुआ है, सिर्फ टाइम देने की मोहलत चाहिए, थोड़ा सीखने का ये चाहिए। गूगल एआई स्टूडियो, यहाँ पे जेमिनी के 2-3 वर्जन आ चुके हैं, 2.0 वगैरह, तो वहां से एक वर्जन जो होगा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जेमिनी 2.0 फ्लैश करके है, उसका आउटपुट इनपुट प्राइजेस वहां पे दिया हुआ है। हमें सिर्फ क्या करना है, थोड़ा सा उसको ये करना है, प्रॉम्प्ट देनी है। ओके, मैं यहाँ पे लिखूंगा राइट प्रोग्राम। ओके, जो लैंग्वेज आपको पता नहीं उसका भी लिखा तो भी चलेगा। इन सी राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट इंटरेस्ट इन सी प्रोग्राम। इतना भी बड़ा प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, वो वहां पे आपको बता ही देगा।
एक मिनट। कंट्रोल V, रन कंट्रोल, यहाँ पे लास्ट में राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट इंटरेस्ट इन सी प्रोग्रामिंग। ओके, उसने बेसिक प्रोग्राम दे दिया, उस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन किस तरीके से बन पाएगा उसने वो भी यहाँ पे दे दिया। यहाँ पे सिर्फ हमने इंटरेस्ट डाला, उसने दो दो फॉर्मूलेस करके यहाँ पे कोड दे दिया। एक दे दिया सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा दे दिया कंपाउंड इंटरेस्ट। हमने सिर्फ उसको एक ही बोला था, उसके लिए कौन कौन सी फाइल लगेंगी, मैथ.h फाइल रिक्वायर्ड फॉर अ पावर फंक्शन। उसने इतने डिटेल में कर दिया कि जितने डिटेल में हम समझ भी नहीं पाते। ओके, कौन से भी कितना भी हार्ड कोड होगा, कितना भी आपको तकलीफ होगी प्रोग्रामिंग में, तो सिंपल से यहाँ पे डाल दीजिए, उसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, आपके दिमाग में रहेगा कि मुझे पूरे ऐप का कोड होना चाहिए, पूरा ऐप का कोड यहाँ पे मिल सकता है, पूरे वेबसाइट का कोड आपको यहाँ पे मिल सकता है। आपको सिर्फ वहां से उठा के कैसे इस्तेमाल करना है उसके लिए आप इस वेबसाइट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है वो कौन सा है, एआई स्टूडियो, गूगल का एआई स्टूडियो है। इसके लिए यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग के लिए बहुत आसानी बन सकती है। ओके, कौन सी वेबसाइट होगी, कुछ भी होगा तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे वो और टीचर्स रहेंगे उनके लिए बहुत जरूरी काम है। नेक्स्ट आ जाएंगे 123apps.com। यहाँ पे इतने सारे एप्स मिलेंगे आपको, एआई एप्स 123apps.com पे, जिसका इस्तेमाल आप अलग अलग टूल्स के लिए कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग के लिए जैसे आप कैपकट का इस्तेमाल करते हैं, रील बनाने के लिए आप कैपकट का इस्तेमाल करते हैं। अभी हमारे कॉलेज को किसी थोड़ा सा फैलाना है तो मैं क्या करूंगा, रील वाले वीडियोस देखूंगा। ओके, जो अब पूरे के पूरे दिन कहा चल रही है, रील पे चल रही है, और उधर के लोग कहा जा रहे हैं, एआई पे जा रहे हैं। तो मुझे मेरा कॉलेज के रील्स बना के मुझे क्या करने हैं, वायरल करने हैं। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो कैपकट का इस्तेमाल कर सकता हूँ और 123 एप्स का इस्तेमाल वहां पे कर सकता हूँ। runway.ai करके एक वेबसाइट है जहां पे आप खुद की एडवर्टाइजिंग, वीडियो एडवर्टाइजिंग बना सकते हो। ओके, क्रिएटिफाई करके पन एक वेबसाइट है जहां से आप क्या कर सकते हैं, आपके कॉलेज के एडमिशन्स के वीडियो बना सकते हो, आपके शॉप के वीडियोस बना सकते हो, कुछ भी होगा तो वहां से आप बना सकते हो। थोड़ा सा हम जाएंगे टेक गुरु प्लस .com पे, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा जो बच्चे लास्ट ईयर में जाएंगे, अब यहाँ पे लास्ट ईयर के बच्चे होंगे तो उनको पता होगा कि टेक गुरु प्लस .com ये जो वेबसाइट है, यहाँ पे आपको जाना है और आपको खुद का एक रिज्यूमे, एक सीवी बनाना पड़ता है, रिज्यूमे बनाना पड़ता है। और वो रिज्यूमे किस तरीके से होना चाहिए कि कौन से टेम्पलेट में हम फिट बैठ सकते हैं, उसका जो नॉलेज मिलेगा, जिस उसका जो फ्री टेम्पलेट्स मिलेंगे, वो सब के सब फ्री टेम्पलेट्स आपको कहाँ से मिलेंगे, इस टेक गुरु प्लस .com से। तो ये टेक गुरु प्लस .com जो होगा, वेट अ मिनट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए, थोड़ा सा आप स्टाफ को भी ये बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है। हमारे यहाँ पे एमएससी है तो हमें बच्चों को क्या करना है, थोड़ा सा अभी कंपनीज में भेजना होता है, ओजीटी के लिए, आईटी के लिए। तो वहां पे हम क्या करेंगे, आप यहाँ से टेम्पलेट, एक फिक्स टेम्पलेट करेंगे, सबका फिक्स रिज्यूमे बनाएंगे और हर कंपनी के यहाँ पे हम डेस्क के लिए भेज देंगे। जहां से जो बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, तो ओजीटी के लिए और इसके लिए हम तो काम में आ सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इश्यू लग रहा है मुझे इंटरनेट का। तो टेक गुरु प्लस .com ये जो रहेंगे, यहाँ पे फ्री रिज्यूमे टेम्पलेट से उस टेम्पलेट का यूज आप कर सकते हो। अलग अलग बहुत सारे टेम्पलेट्स है, उनका इस्तेमाल आप कर सकते हो, याद रखिए। उसके बाद टीचर को खुद का कोर्स बनाना है, डिजिटल कोर्स बनाना है। ओके, तो डिजिटल कोर्स के लिए यहाँ पे एक वेबसाइट है, courseai.co।
अभी यहाँ पे मुझे समझ लो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बनाना है। ओके, तो मैं यहाँ पे सिंपल से डालूंगा डिजिटल मार्केटिंग क्रिएट कोर्स। ओके, योर अकाउंट फ्री अकाउंट, यहाँ पे आपको सब कुछ डालना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, गेट फ्री करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे आपका खुद का कोर्स क्या हो जाएगा, बन जाएगा। उस कोर्स में आप आपके इनपुट्स वापस दे सकते हो, वहां पे आपका नाम वहां पे इंक्लूड कर सकते हो, और वो कोर्स जो होगा वो बाहर आप लोगों को दे सकते हो, बच्चों को दे सकते हो। मैंने यहाँ पे अभी पूरा का पूरा डेमो तो यहाँ पे इस लॉगिन से मेरा नहीं है। यस सर। तो मैंने IKS अभी इंडियन नॉलेज सिस्टम का एक कोर्स है जिसके वीडियोस वगैरह हमें मिल नहीं पा रहे। ओके, तो थोड़ा सा मैं इसको IKS डाल दूंगा और किसी कोर्स को बना दूंगा। तो एक कोर्स क्या कर सकता हूँ, मेरे FI के बच्चों को दे सकता हूँ, और टीचर्स के लिए बहुत आसानी हो जाएगी इस कोर्स को थोड़ा सा ये करने के लिए, कि खुद का कोर्स बनाना होगा ऑनलाइन क्रिएशन टूल से कोर्स के लिए। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, और ये इस्तेमाल करेंगे तो आपका खुद का कोर्सेस बन सकता है। रिसर्च पेपर के लिए वापिस एक टूल है, वापिस एक बहुत ऑथेंटिकेटेड उसे बोला जाता है Jenny.ai। रिसर्च पेपर बनाना होगा, रिसर्च कंटेंट आपको लेने होंगे, थोड़ा सा प्राइस में इसका चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे हर रिसर्चर इससे क्या बोलता है, थोड़ा सा ऑथेंटिकेटेड बोल देता है। ओके, आपको रिसर्च करना होगा, मीट यूर इंटेलिजेंट रिसर्च असिस्टेंट, आपको रिसर्च करना होगा तो इसे इस्तेमाल करना होगा, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। ये थोड़ा प्राइसिंग में चला जाएगा, लेकिन आपको लेना होगा तो ये बहुत बढ़िया टूल है Jenny.ai करके। ऑथेंटिकेटेड रिसर्च यहाँ से मिलेगा, जो डेटा कलेक्शन होगा, डेटा सैंपलिंग होगी, डेटा एनालिटिक्स होगा, SPM जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होगा, वो सब करके आपको प्रॉपर कंक्लूजन पे लेके आएगा, तो वो Jenny.ai। इन्फोग्राफिक को मैंने पहले बता दिया। उसके बाद Agent.ai। इसमें एजेंट बिल्डर है, आपको यहाँ पे बहुत सारे टूल्स मिलेंगे जहां पे आपको इस्तेमाल करके, बहुत सारे एजेंट टूल्स मिलेंगे जहां पे आप इस्तेमाल कर सकते हो और उसका अपने एजुकेशन में आप लेके आ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कंपनी रिसर्च एजेंट, कंपनी का रिसर्च देंगे। फ्लक्स इमेज जनरेटर है। इस नंबर ऑफ टूल्स आपको यहाँ से मिलेंगे, और जो टूल्स होंगे वो क्या रहेंगे, सिर्फ AI टूल्स रहेंगे। AI न्यूज एग्रीगेटर, सब AI न्यूज क्या करेगा, एग्रीगेट करेगा। लिंक्डइन समरी जनरेटेड होगा। ओके, उसके बाद ब्लॉकिंग वेबसाइट्स होंगे, वेब पेजेस होंगे। आपको जो कुछ भी इस्तेमाल करना होगा तो एक बार इस वेबसाइट को आपको जाना ही जाना है, Agent.ai। उसके बाद फीडबैक लेना होगा, क्या लेना होगा, फ्लेक्सिबिलिटी डिप्स रिसर्च आ गए यहाँ पे। देखिए ये भी फ्लेक्सिबिलिटी एक ChatGPT जैसे एप्लीकेशन है, उसका डीप रिसर्च करके एक है। यहाँ से आपने गो कर लिया तो उसके ऊपर चले जाएंगे, और वहां पे आपको रियल टाइम स्टॉक एनालिसिस देखना होगा तो Dapper.ai है। तो ये सब कुछ जितना बात बता रहा हूं, उससे ज्यादा टूल्स यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको, Agent.ai पे मिलेंगे। दो जगह मिलेंगे, एक रहेगा AI हब करके, AI हब और Agent.ai। इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको नंबर ऑफ टूल्स जो होंगे AI के हमें मिलते जाएंगे। अभी मैं क्या बता रहा हूँ कि यूजेस ऑफ टूल्स बता रहा हूँ, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे वो मैं थोड़ा सा एक लास्ट PPT में कंक्लूड करूंगा। आपको किसी बुक को समराइज करना है, ओके, तो summarize.ai, ओके, ये टूल है। किसी भी बुक को आप सिलेक्ट कीजिए, वहां पे जितने नंबर ऑफ बुक्स है उसको समराइज करके आप वहां पे उसकी स्टोरी लर्न कर सकते हो। नंतर YouLearn.ai है, ये बच्चों के लिए बहुत काम की चीज है। उसके बाद जहां से पैसे बनते हैं वो चीज मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको, कि बच्चे कहाँ से पैसे बना पाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, AI प्रॉम्प्ट मेकर बनना पड़ेगा। तो प्रॉम्प्ट मेकिंग पे ही अभी ज्यादा चल रहा है।
एआई ट्यूटर मेड फॉर यू। आपको क्या चाहिए वो आपको यहाँ पे डालने हैं। उसके फीचर्स क्या है एक बार देख लेते हैं। समराइज चैप्टर्स नोट्स आपको यहाँ से मिलेंगे, सोर्स इंक्लूड्स रहेंगे, जहाँ पे टेस्ट नॉलेज रहेगा, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल सकता है। यानी कि ये कौन सा है, ulearn.ai। आपको सीखना होगा तो आपको इस वेबसाइट पे जाके आप सीख सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे उसके फीचर्स, थोड़ा सा मशीन को ये हो चुका है, बहुत सारे विंडोज ओपन है, इसके लिए शायद हो चुका है। वेट अ मिनट। जहां से हम क्या करेंगे, अभी प्रॉम्प्ट बनाना सीखना है, आपको प्रॉम्प्टर बनना है, जहां पे अभी सबसे ज्यादा डिमांड उसकी बन रही है। इतने नंबर ऑफ टूल्स है, लेकिन उस टूल्स में मुझे निकलना क्या है, ओके वो कौन बताएगा? जिसके पास अच्छी प्रॉम्प्ट होगी वही क्या करेगा, अच्छा डेटा निकाल पाएगा। तो कौन किस तरीके से प्रॉम्प्ट को जनरेट करना है, किस तरीके से प्रॉम्प्ट को लिखना है, वो आपको बताएगा कौन, prompt.jenny.com। इस वेबसाइट पे जाने के बाद किस तरीके से प्रॉम्प्ट को लिखा जाएगा, किस तरह के प्रॉम्प्ट से अच्छा डेटा निकाल पाएंगे, किस तरीके से प्रॉम्प्टर बनना है। और जो प्रॉम्प्ट अभी बहुत सारे टूल्स पे, बहुत सारे इंस्टा पे आ रहे हैं कि आप प्रॉम्प्ट मेकिंग सीखिए, उससे ज्यादा पैसा मिलेगा। अभी इतने सारे टूल्स आ गए तो उसका इस्तेमाल करने वाले लोग भी चाहिए। जो लोग मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, थोड़ा सा इनकम सोर्स क्या हो जाएगा उनका, बढ़ जाएगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लास्ट स्लाइड। किसी ने स्क्रीनशॉट निकाल लिए होंगे तो थोड़ा सा वो बाद में देख सकते हैं, थोड़ा सा उसको लॉगिन करके उसके बाद थोड़ा सा डेटा डाल के थोड़ा सा आउटपुट्स खुद के लिए ले सकते हो। और ये जो है थोड़ा सा कॉलेज के हिसाब से दिया हुआ है, वो तो दोनों मिक्स थे, दोनों तीनों मिक्स थे। तो यहाँ पे ग्रेड स्कोप करके है, magicschool.ai करके है, उसके बाद है otter.ai, नंतर उसके बाद है स्पेसिफाई और सिंथेजा और पार्ले और ग्रामरली। इसमें से दो तीन टूल आपके याद में होंगे मेरे ख्याल से। ग्रामरली जो ग्रामर चेक करेगा, जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है उसके लिए यूज होगा। ग्रेड स्कोप, यहाँ पे जो ग्रेड स्कोप करके वेबसाइट है, ग्रेड स्कोप करके एआई टूल्स है, वहां पे आपको स्टूडेंट की ग्रेडिंग करनी होगी, वहां पे क्यूज बनाने होंगे। quizzes.com करके पन है, quizzes.ai पन है, जहां से आप फास्टर फिंगर का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, तो वहां पे जो एक क्वेश्चन पेपर बनेगा, उसके बाद उसका क्यूआर बनेगा, जो सामने वाला बच्चा है उसे क्यूआर को स्कैन करेगा, वो तुरंत उसके लिए एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। जो फास्टेस्ट फिंगर्स रहेगा उसका आपको डेटा मिलेगा, और वो डेटा आप बच्चों के ग्रेड स्कोप में आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्विज़ेस में इस्तेमाल कर सकते हो। तो ग्रेड स्कोप नाम से भी एक वेबसाइट है जो आप देख सकते हो। otter.ai है, ये सबसे बढ़िया टूल्स है, लेकिन बहुत महंगा भी है। ओके, उसके बाद स्पेसिफाई, ये जो टूल्स है, जो ब्लाइंड बच्चे रहते हैं उनको पढ़ना नहीं आता, तो ये पूरे का पूरा बुक को क्या करेगा, ऑडियो में कन्वर्ट करेगा। पूरे बुक को क्या करेगा, ऑडियो में कन्वर्ट करेगा, और ऑडियो से कन्वर्ट करके आप उसका जो साउंड है वो आप ब्लाइंड पर्सन को दे सकते हैं। तो वो बुक जो होगा उसको क्या हो जाएगा, ये जो है ये वेबसाइट है, यहां से आप क्या कर सकते हैं, ट्राई योर एआई वॉइसेस, कौन से एआई वॉइस में आपको टूल्स को बनाना है, आप वो बुक दीजिए। वो बुक क्या करेगा, वो डायरेक्टली वहां पे ट्राइड फॉर कीजिए, उसके बाद उस बुक का कन्वर्जन वो साउंड में कर देगा। बच्चे जो जो अंधे हैं लेकिन सुन सकते हैं, उन लोगों के लिए क्या हो जाएगा, वो बुक वो पढ़ सकते हैं उनके कानों से। तो आप इस टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कुछ बच्चे होंगे तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो। सिंथेसा, इसका मतलब ये कि आपको वीडियो एडिटिंग करना होगा तो इस वेबसाइट का आप इस्तेमाल कर सकते हो, सिंथेसा। ओके, तो इसका इस्तेमाल करके आपके जो प्रोजेक्ट्स रहेंगे, जो पिक्चर्स रहेंगे, जो वीडियोस रहेंगे, कॉलेज के वीडियोस हम निकाल लेते हैं, कुछ प्रोग्राम हो गया, उस प्रोग्राम को हमें एडिट करना है, अप्रोप्रिएट लेना है, जो हैंड का वाइबलिंग होता है उस वाइबलिंग को रोकना है, तो आप इस टूल्स में आप वहां पे कर सकते हो। ओके, और ये जो टूल्स है, अभी मैंने क्या किया है, ये समुद्र से सिर्फ, सागर में से सिर्फ एक बूंद निकाल लिया। ओके, एक बूंद निकाल के इतना कुछ हो गया।
अभी इतने टूल्स जो है ये सिर्फ एक बूंद है। और ये जो है AI हब करके भी एक वेबसाइट है, उसमें भी आप बहुत सारे AI के टूल्स देख सकते हो। जो जनरेशन बदल रहा है उस जनरेशन के साथ हमें चलना है, नहीं तो हम पीछे रह गए तो फिर इस जनरेशन पे हम काम नहीं कर पाएंगे। ओके, वो लोग बोल रहे हैं कि जॉब जा रहे हैं, जॉब का ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पर लेकिन जो जॉब कैसे जा रहे हैं कि जॉब स्मार्ट हो चुके हैं, अभी जाएंगे तो नहीं लेकिन स्मार्ट हो रहे हैं। जो एक बंदा यानी कि 10 बंदे जो काम करेंगे वो 2 बंदे में काम खत्म हो रहा है। इसका मतलब थोड़ा सा काम का क्या होगा, जो प्रेशर यानी कि जो 6 महीने में प्रोजेक्ट खत्म होने वाला है वो क्या हो जाएगा 2 महीने में खत्म होगा। तो कंपनी और नया प्रोजेक्ट लेगी और वो खत्म करेगी और जल्दी से खत्म करेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपनी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ओके, लोग तो कम नहीं होंगे, जो प्रॉम्प्ट लिख पाएंगे वो AI में टिकेंगे। तो ये थोड़ा सा यूजेस ऑफ AI था कि AI कहाँ तक चला गया है। ओके, इसके भी अलग अलग रूप और बन चुके हैं। रोबोटिक्स नाम का एक टॉपिक है जहां पे मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया, सिर्फ AI टूल्स को मैंने अभी बताया कि जो आप उसके साथ खेल सकते हो। जिसके साथ हम खेल ही नहीं सकते तो वो बता कि कुछ फायदा नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा रोबोटिक्स के और इंटरनेट ऑफ थिंग्स से थोड़ा सा बाहर रहा। रोबोटिक्स में क्या हो जाएगा, अभी देखिए आपने कि एक टीचर आ चुका है कि जो पढ़ा पा रहा है। पहले गूगल था, सिर्फ गूगल क्या कर रहा था कि इंफॉर्मेशन दे रहा था, गुरु नहीं बन पा रहा था। अभी क्या हो गया, वो इंफॉर्मेशन भी दे रहा है और गुरु भी बन पा रहा है। तो थोड़ा सा टीचर्स के लिए भी थोड़ा सा बहुत ये करना पड़ेगा। लेकिन जो बच्चों के इमोशन समझ के टीचिंग करना होता है ना, वो नहीं कर पाएंगे। वो सिर्फ कितना टीच करना है, क्या करना है, कौन सा टॉपिक है, उतना 1 घंटे में खत्म कर देंगे, बाहर चले जाएंगे। किस बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है वो वहां पे कुछ नहीं कर पाएंगे। वो सिर्फ एनालिसिस डेटा एनालिटिक्स कर पाएंगे, उसके बाद वो कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हर बच्चे का फेस रीडिंग करके वहां पे टीचर्स खड़ा रहता है, इसका मतलब वो 1.5 फुट का हाइट लेके खड़ा रहता है, इसका मतलब वहां पे क्या हो रहा है, वो बच्चों को देख के वो क्या कर रहा है, सीख रहा है। कुछ चैट बॉक्स में ये भी आ रहा है कि कुछ और टूल्स ये है क्या, और बहुत सारे टूल्स है। ये सिर्फ सागर में से एक बूंद निकाल लिया और आपके सामने रख दिया। ओके, जब टाइम मिलेगा तो एक एक को हम सीखना कैसे सीखते हैं, कैनवा कैसे सीखेंगे, थोड़ा सा कैनवा पे ध्यान देंगे। अभी एडवर्टाइजिंग एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं। एजुकेशन एडिशन लीजिए, गूगल का एजुकेशन एडिशन लीजिए, गूगल सूट का एजुकेशन एडिशन लीजिए, जो कुछ क्या है सब कुछ फ्री में है, उसका इस्तेमाल हम फ्री में कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच समरी मैम। थैंक यू सर। आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जो है वो सेशन को कवर किया। थैंक यू सो मच फॉर एनलाइटनिंग योर स्पीच एंड नॉलेज and sharing your knowledge and expertise which helped us to understand AI in education in very better manner, and we truly appreciate your time and effort in making this session informative and engaging. सर, आपके लिए मैं एक कपलेट बताना चाहूंगी, एक कपलेट बोलना चाहूंगी। आपने जो है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जो है AI टूल्स को एक्सप्लेन किया और हमको काफी ज्यादा जो है ये हेल्प मिलेगी आपके इस लेक्चर से। और जब भी हम लेक्चर देखेंगे तो एक बार आपको जरूर याद करेंगे। आपके लिए मैं एक कपलेट बोलना चाहूंगी सर, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए आप। जो न मुरझा सके वक्त की धूप से, सते एहसास पे वो शजर छोड़ दे, जिंदगी चाहिए खुशबुओं की तरह जो दिखाई न दे और असर छोड़ दे। तो हर बार जब हम AI का यूज करेंगे या कुछ प्रॉब्लम आया कुछ आया तो हम आपकी ये वीडियो जरूर देख सकते हैं और हमको हेल्प बहुत ज्यादा मिलेगी। We truly appreciate your time and effort in making this session informative and engaging, and looking forward to learning more from you in future. Okay, thank you, sir. थैंक यू मैम, थैंक यू। Now, as we approach the conclusion of this webinar, I would like to invite Professor Abdullah Danial sir to deliver the vote of thanks. A very good morning, one and all. Honorable Principal Dr. Hamdani Rizwana Ma'am, Vice Principal Dr. Arif Anjum sir, Head of the Computer Science Department Professor Samreen,
I am here to extend the vote of thanks for this webinar, and I'm very grateful to the Computer Science Department for giving me this opportunity. I would like to thanks to our honorable keynote speaker for this program, Dr. Dr. Mali sir, for giving his precious time and delivered thought-provoking lecture for our participants. Sir, your lectures are very very thought-provoking, and it is benefited to our students. We hope so. And I would like to thanks to the college authorities for giving us the permission for organizing this kind of webinar. And I would like to congratulate to Professor Samreen, Professor Mubashira for organizing the wonderful webinar on the wonderful topic, which helps our students, our teachers to improve their skills. And we are very grateful to you, sir, for giving your precious time. On the behalf of Mahatma Gandhi Vidya Mandir's Arts, Commerce and Science College, I would like to thanks to you for, and I'm very grateful to you. And we hope so that you will give your precious time like this in future too. So here I would like to thanks, last but not the least, I would like to thanks all the participants for being patient and attending this webinar. Thank you very much. Thank you very much to all of you. Thanks once again. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Professor Abdullah Nanial, sir, for your kind words and for bringing today's event to a formal close. We hope this session has been insightful and inspiring for all of us. Have a wonderful day. Thank you. Thank you all.